કૃણાલભાઈ સ્વાગત. આજે કેમ જુદા લાગો છો? કેમ ભાઈ નહીં કપાય કંઈક જુદા લાગે. ઊંઘતો નહીં એટલે અથ પારાયણ પૂજન વિધિ અલા તો બધી નવી બનાવવાની છે આપણે લાભ લે તમારે તૈયાર એટલે હું તૈયાર થઈને પારાયણ પારાયણ क्या विराटભાઈ કેમ છો? બહુ સરસ તૈયાર કર્યો છે તમારા હયાનને. તમે આનંદ થયો. I know. He is actually eager to sing. Next week. रात को 11 बजे हरे कृष्णा हरे राम बुलवा था हम लोगों को. कौन टेम्पल ले गया था उसको एक बार तो कैसे यो क्या ચાલે? ભગવાનની કૃપા. ના 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 કંઈ નહીં. આપણે કેટલા વાગ્યા? 6 o'clock something. એ વખતે વિશાલ ઓર્ડર લઈશું. Okay, that's fine. ચલો. મને ફોન નહીં આવે. जनरली फोन करे मन लेतो जजे एम. पराग भाई છે છે તો કહેતા હતા ને કે બોસ્ટન ગુરુવાર આવી જાવ તો આવી ગયા. ચાલો પછી આપણે વિશું
સ્તુતિ રહી ગઈ હતી ગઈ વખતે આપણે. अभी इस अंकल को दे दो फिर बजा ये बजा તને થાક લાગ્યો બેટા? હા? આર યુ ટાયર્ડ? No. આંખો કેમ તારી આવી છે થાકી ગયો હોય એવી? Because I have allergies. ઓહ સોરી. ટર્મરિક વાળું દૂધ પીવાનું. પેલું લાવ્યો છું મારે છોકરી મને નવું લઈ ले जाऊंगी अभी पता नहीं उसका कि ले जाऊंगी આપણે ગઈ વખતે સ્તુતિ રહી ગઈ હતી. હા મને યાદ છે. તમે વિડીયો ઉતાર એમાં નથી વિડીયો નથી ઓકે તો પછી કેવું પડે. श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे अक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वेदादिकेत्यं विभुम् तमोलाक्षयुक्तमेव सहजा नन्दं च वान्दे सदा. ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदां सत्यां मुच्यते भवबन्धनात्. स्वामिनारायण भगवान जय. अक्षर हरि कृष्ण महाराज की जय. राधा कृष्ण देव की जय. राधा कृष्ण देव की जय. सियावर रामचंद्र भगवान की जय. उमापति महादेव की जय. भगत जी महाराज की जय. शास्त्री जी महाराज की जय. योगी जी महाराज की जय. प्रमुख स्वामी महाराज की जय. महंत स्वामी महाराज की जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. अक्षरधाम महोत्सव की जय. મોગલધામ મંદિર પાટોત્સવની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ મહારાજની જય.
સ્વામિનારાયણ 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 તમે લઈ આવો ને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અમે સૌ સ્વામીના બાળ મરીશું સ્વામીને માટે. અમે સૌ સ્વામીના બાળ મરીશું સ્વામીને માટે. અમે સૌ શ્રીજી તણાયું શ્રીજીને માટે. અમે સૌ શ્રીજી તણાયું શ્રીજીને માટે. નદી ડરતા નદી
चिंता नहीं करता हमारा जाने परवाह हमारे घर नहीं कोई हो अभी जन्या की मरे हमारे घर नहीं कोई हो अभी जन्या की मरवा अभी आरम्भो परीदा तो अभी नैषु अभी आरम्भो परीदा तो अभी नैषु हमारा अक्षर पुरुषोत्तम गुणातीत ज्ञान गाईशु हमारा अक्षर पुरुषोत्तम गुणातीत ज्ञान गाईशु हमें सौ श्रीतना पुत्रो अक्षरे वास मारो हमें सौ श्रीतारा पुत्रो अक्षरे वास मारो भस्म छोड़ी तो हमारे शोक शालो स्वधर्मी भस्म छोड़ी तो हमारे शोभ सालो जो सौ स्वामी नरागी काई खामी जो सौ मोतेना स्वामी नरागी काई खामी पुरुषोत्तम स्वामी मयागो नानीत स्वामी प्रगट पुरुषोत्तम स्वामी मयागो नानीत स्वामी सौ स्वामी मनीषो स्वामी हमें सौ स्वामीना बालक मरेशु स्वामी ने मारे हमें सौ श्रीतरायुवागणेशु श्रीजी ने मारे हमें सौ श्रीतरायुवागणेशु श्रीजी ने मारे स्वामीनारायण भगवान की जय स्वामीनारायण भगवान की जय वड़ताल गाम फूलवाड़िए रही डोड़ो आमानी डाल 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 रे बांधो आमलड़ी डाल बालो मारो पीछे डोड़ो आमानी डाल रे बांधो आमलड़ी डाल बालो मारो
હિંડોળો આંબાની ડાળ રૂપા કાળા બે ચાર વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ મખમલ કેરા ગાદલા રે હિંડોળો આંબાની ડાળ સલનાઓ છાડ વાલો મારો નીચે હિંડોળો આંબાની ડાળ સુરવાડ પહેર્યો શામળો રે હીરો આંબાની ડાળ નાઈકો મકદાર વાલ વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ સરકસી જામો પહેર્યો રે હિંડોળો આંબાની ડાળ શેલું બુટાદાર વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ માથે મારવાડી બાંધ્યું રે મોડોડ્યું કુંડળ મરકાકાર વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ કંઠે કંઠમણી શોભતો રે હિંડોળો આંબાની ડાળ બારસ કપૂરના હાર વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ આએ બાજુ બંધવેર ખારે હિંડોળો આંબાની ડાળ પહોંચી મંદિર જડાવ વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ મકડા બેઉ હાથ મારે હિંડોળો આંબાની ડાળ દશે આંગળીએ વેડ વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ કટારું આંખો રે હિંડોળે આંબાની ડાળ સોરઠની તલવાર વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ પગે મારવાડી પહેરી મોજડી રે હિંડોળો આંબાની ડાળ ચાલે ચટકંતી ચાલ વાલો મારો નીચે હિંડોળો આંબાની ડાળ પગે સોના કેરા સાંકડા રે હિંડોળો આંબાની ડાળ ચાંચરનો ઝંકાર વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ ચાર પાએ ચાર ડુગરા રે હિંડોળો આંબાની ડાળ પૂર્ણો ઝંકાર વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ સડવેતે હિંચકો નાખતા રે હિંડોળો આંબાની ડાળ રેશમની દોર હાથ વાલો મારો નીચે હિંડોળો આંબાની ડાળ સાધુ બ્રહ્મચારી પાડ સાથ મારે હીરો આંબાની ડાળ ઝૂલે વાળી મોજ વાલો મારો નીચે હિંડોળે આંબાની ડાળ
हिंडोळे आबानी दान आनंद स्वामी उतार्या आरती रे हिंडोळा आंबानी दान आनंद स्वामी उतारे आरती रे हिंडोळो आबानी दान प्रेमानंद बलिहार वालो मारो नीचे हिंडोळे आंबानी दान प्रेमानंद बलिहार वालो मारो नीचे हिंडोळे आबानी दान वडताल गामे फुलवाड़िए रे हिंडोळो आंबानी दान वडताल गाम फुलवाड़िए रे हिंडोळो आबानी दान आजो अमल निराड़ वालो मारो नीचे हिंडोळे आंबानी दान वडताल गाम फुलवाड़िए रे हिंडोळो आंबानी दान वडताल गाम फुलवाड़िए रे हिंडोळो आंबानी दान जय स्वामीनारायण भगवान की जय। हिंडोरना में होरे झूलो मारा हिंडोरना में होरे झूलो मारा छेल झुलाओ रतन हिंडोरे सुफल करो सबका छेल झुलाओ रतन हिंडोरे सुफल करो सबका हाँ जी सुफल करो सबका होरे झूलो मारा हिंडोरना में होरे झूलो मारा हिंडोरना में होरे झूलो मारा होरे झूलो मारा झरमर मीनावर से झरमर मीनावर से गगन गन गार झरमर मीनावर से गगन गन गार साधुर मोर बपैया बोलत आनंद छायो हार साधुर मोर बपैया बोले आनंद छायो हार आनंद छायो हार झूरे होरे झूलो मारा हिंडोरना में होरे झूलो मारा तुम झूलो भूखाओ हिंडोरा तुम झूलो भूखाओ हिंडोरा करिगे सुभग समाज झूलो भूखाओ हिंडोरा करिगे सुभग समाज तान मिलाओ बाजन ताल बखार तान मिलाओ बाजन ताल बखार बाजन ताल बखार होरे झूलो मारा हिंडोरना में होरे झूलो मारा यश वीर की नाथ तुम्हारी की नाथ तुम्हारी मदन भयो हलकार की नाथ तुम्हारी मदन भयो हलकार अक्षरनाथ रहो नैनन में प्रेमानंद सिरसार अक्षरनाथ रहो नैनन में प्रेमानंद सिरसार प्रेमानंद सिरसार होरे झूलो मारा हिंडोरना में होरे झूलो
हिंडोरना में हौरे हौरे झूलो महाराज। हम सभी चातुर्मास के अंदर अभी भक्ति का एक यज्ञ कह सकते हैं कि भक्ति का अर्घ्य भगवान को अर्पण करते हैं। स्वामीनारायण मंदिर की एक विशेष बात यह भी है कि हम हरिकृष्ण महाराज को, हमारे घनश्याम को हिंडोड़े में झुलाते हैं और उसी भाव का कीर्तन हमने आज सुना। आज हम विशेष इस सभा में पारायण का लाभ लेने वाले हैं, तो आज हम अगले चरण में अब पारायण पूजन में जुड़ेंगे। तो यहाँ से जो हरिभक्तों का नाम बोला जाए वो खास यहाँ से कार्यकर गण सभी यहाँ पे सभी बैठे हरिभक्तों को यहाँ से पूजन विधि की जो डिश है वो आपको देंगे और हम सभी पारायण पूजन विधि में जुड़ेंगे। यहाँ से सबको पूजन की डिश जो है वो प्राप्त होगी। उसमें नाड़ा छड़ी होगी और एक बॉल में पानी भी देंगे। पानी बॉटल છે ને કિચન એરિયા दौड़ी से
क्रांति के जनक। हम सब अब पूजन विधि में जुड़ेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। मंगलम स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमम् महापूजा समारंभे नमामि भक्त भावतः। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं नामाक्षरं ज्ञानदं। वंदे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपं मुदा। वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा। वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांति पाठः। समग्र विश्व में, हमारे देश में और पारण में जुड़े सभी यजमानों के कुटुंब में सदाकाल शांति रहे। और इसी अवसर के लिए हम वैदिक शांति पाठ में जुड़ते हैं। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रन्तन्न आशुभ। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। स्वस्ति वाचनम। सभी यजमानों के कपाल में हम कुमकुम का चांदा करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुसस्तनु विर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। कंकण बंधनम। सभी यजमानों के राइट हैंड पे हम नाड़ाछड़ी भी बांधेंगे। हरि ओम यदा बध्नन्दाक्षायण हिरण्यगुशतानिकाय सुमनस्यमानाः तन् आबध्नामि शतशारदाय युष्माञ्जरदृष्टिर्यथा सम। ओम युवासुवासाः परिवीत आगात्स उश्रेयान् भवति जायमानः तन्धिरास कवयोन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। सर्वकर्म फलाप्राप्ते कङ्कणं सूत्रनिर्मितं हस्ते बध्नामि शुभग त्वं जीवं शरदां शतं त्वं जीवं शरदां शतम्। अक्षर पुरुषोत्तमाभिवन्दनम्। हस्ते पुष्पाणि अक्षतांश आदाय। हम सभी अपने राइट हैंड में पानी की स्पून है वो ले लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। देवाभिवन्दनार्थं गुरुपादाभिवन्दनार्थं अक्षतान् समर्पयामि नमस्करोमि। हम जो पानी है वो अपनी थाली में ही डाल देंगे और हम फिर से अपने हाथ में अपने जल राइट हैंड में पानी की स्पून है वो ले लेंगे। प्रधान संकल्पः
नमः परमात्मने श्री स्वामीनारायण परब्रह्म परपुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत देश ब्रह्मा वर्तैकदेशे पुण्यभूमौ वेस्ट वर्जीनिया राज्ये मॉर्गन टाउन नगरे अस्मिन् श्री अक्षर पुरुषोत्तम महा शुभस्थाने मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुभ पुण्यतिथौ शुक्लवद दशम्यां तिथौ शनिवासरे सर्वेषु गृहेषु यथायथं राशिस्थानस्य सुसत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते सांगम सपरिवारं तत्तन्नगर वास्तव्यानां। हम अपना नाम और अपने कुटुंबीजनों का नाम मन में लेंगे। नाम भक्तानां अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्त गुणातीत मंडल भक्तानां। अब यहाँ से जिस प्रकार से बोला जाए वैसे भी आप बोलेंगे। मम तथा च आत्मनः वेदोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक कर्मदोष परिहार अर्थम आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक त्रिविध ताप उपशमन अर्थम लोके सभायां राजद्वारे धर्मक्षेत्रे कृषिक्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे अभ्यास क्षेत्रे स्वे स्वे कर्मणि यशो विजय लाभ धन धान्य आदि प्राप्ति अर्थम शरीरे गृहे च दोष रोग क्लेश भय उच्चाटादि व्याधि विनाशार्थम गृहे देवालये च प्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणम अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि प्रमुख श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रगटक गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारेश अन्योपचारेश पारायण पूजन निमित्ते श्री पूजम आख्यम कर्म अहं करिष्ये। हम वो जल है वो अपने डिश में डाल देंगे। अब हम विशाल भाई से विनती करेंगे कि वो ओके हाँ हम सब देख सकते हैं कि ठाकुर जी की लिखी हुई शिक्षा पत्री वहाँ पे बाजोट पर विराजमान है। तो हम ग्रंथ का पूजन करेंगे। सो सभी आप अपनी स्पून रख सकते हैं अंदर। अगर आपके पास कुमकुम और अक्षत है तो आप यहाँ खड़े होकर के शिक्षा पत्री का पूजन करके अपनी सीट पे बैठ जाइएगा। श्री धार्मिक स्तोत्रम श्री वासुदेव विमलामृत धाम वासम नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं शितं विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणाम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्वमहाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमलुनोम विलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवद्युरुधानिजस्य पूरे गतागतजलामुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। हरि कृष्ण महाराज की जय। गुणादितानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। सभा के चरण में हम परम पूज्य विशाल भाई से विनती करेंगे जो हमको आज पारण का लाभ देंगे।
यः संकल्पा तपति तपनो वाति वातः समिन्दे वह निर्दत्ते धरणिरुदति लंघते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिल जगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नमः। शोभो साधु गुणे सदा सरळने जगते अनासक्त छो शास्त्री जी गुरु योगी जी उभयना कृपा तणा पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञानेज छो नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवान दुवहो। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी, महंत स्वामी महाराजनी, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी, अक्षरधाम महोत्सवनी। आज हमने कीर्तन भक्ति में जो कीर्तन का लाभ प्राप्त किया, वड़ताल गाम फुलवाड़िए इंडोडो आबा निंदा, उसका इतिहास बड़ा ही रसप्रद है कि वो भजन कैसे बना, क्या रहस्य था और भक्तों के कैसे भाव भगवान स्वामीनारायण ने पूरे किए हैं। चरोतर का जो प्रदेश था, आज से 225 साल पहले वो जोबन पगी करके बहुत ही बड़ा लुटारा हो गया। वो बड़ा ही क्रूर था और इतना क्रूर था कि अपना जो तीर किसी को देता कि भाई विराट भाई ये लो मेरा तीर है, जाकर कलकत्ता जाकर आप विष्णु भाई की दुकान जाकर बोल देना कि ये जोबन पगी का तीर है, मुझे 1.5 लाख रुपया दे दो। तो आप वो तीर दे दो विष्णु भाई को और विष्णु भाई आपको 1.5 लाख रुपये दे देंगे। 225 साल पहले की बात है ये। उस वक्त फोन नहीं था, टीवी नहीं था, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था, फिर भी उसका ऐसा क्रूरता में नाम था, अव्वल नंबर था कि कलकत्ता तक, गुजरात यहाँ पर पश्चिम में है, कलकत्ता साउथ नॉर्थ में है, टुवर्ड्स मोर साउथ, बट फिर भी उसने इतनी क्रूरता की हद पार कर दी थी कि इतनी उसकी ख्याति कुख्याति जो कहो वो ऐसा हुआ था। एक बार गायकवाड़ सरकार उसका जो उसकी तिजोरी थी, लाइक राज्य में से जो करवेरा इकट्ठा करके सुवर्ण मोहर जर जवेरात सब वो लेके राज्य का माल जाता था बड़ौदा की ओर। और जोबन पगी को पता चला, उसको पता ही था कि ये प्लान होने वाला है, तो उसने वो लूटा। तो गायकवाड़ सरकार ने इनाम रखा था कि उस वक्त में वो 1.5 लाख रुपया इनाम में देगा अगर कोई जोबन पगी का जिंदा या मुर्दा उसको सरकार के सामने लाएगा। तो 1.5 लाख रुपया, 225 साल पहले की बात है, 1.5 लाख रुपया उस वक्त छोटी रकम नहीं थी। तो फिर भी वो पकड़ा नहीं जा रहा था और ऐसा क्रूर था कि उसके नाम मात्र से बच्चे भी डरते। हम आज बोलते हैं ना कि सो जा वरना बाबा जी आ जाएंगे, बाबा जी आ जाएंगे। तो उस वक्त गुजरात में और अड़ोस पड़ोस में सब ऐसा बोलते थे कि भाई सो जा, घर में आ जा वरना जोबन आ जाएगा। तो ऐसा उसका बड़ा ही नाम था चोरी और लूटपाट में। उसका ये जो उसने डाका डाला ये बड़ौदा की तिजोरी पे, तो उस वक्त उसका जो घोड़ा था वो उस वक्त जो धमाल हुई, गोलीबारी हुई, उसमें मर गया।
तो ये जोबन पगी कभी रोता नहीं था, लेकिन ऐसा ये घोड़ा था, ऐसा नस्ल वाला था। और ऐसा हमने चेतक की बात भी सुनी है कि महाराणा प्रताप को लेकर चेतक पूरी खाई कूद गया था। आज भी वो खाई हम देख रहे हैं। अगर ये बात इतिहास हमें बताता नहीं तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते कि ऐसा शौर्य हमारे भारत की परंपरा में लिखा गया है। लेकिन उस वक्त वाहन व्यवहार ऐसा नहीं था। सब कुछ वाहन व्यवहार में जो भी आप करो वो बुलकाट थी, बड़द गाड़ियां थी, बैलगाड़ियां थी, या फिर घोड़े पे आप जाते हो। तो वो रो पड़ा, जोबन पगी रो पड़ा। तब जाकर उसके साथी ने बोल दिया कि इससे भी अच्छा एक घोड़ा है और उसको माणकी कहते हैं, और वो भगवान स्वामीनारायण से नाम से जो मशहूर है उसके पास है। तब से लेकर जोबन पगी ने ठान लिया कि मैं ये माणकी को लेकर चुरा लूंगा। और उसी अरसे में भगवान स्वामीनारायण ने नडियाद के बगल में डभाण करके छोटा गांव था, वहां पर गुणातीतानंद स्वामी को दीक्षा देने के लिए, मुलजी शर्मा को दीक्षा देने के लिए यज्ञ का अवसर रचा था। और उस वक्त जोबन पगी ये घोड़ी चुराने के लिए आता है। 3 रात तक वो सोता नहीं है। जहां पर घोड़शाल में सभी घोड़े बांधे गए थे वहां पर वो आता, लेकिन देखता कि सभी घोड़े के पास उसको भगवान स्वामीनारायण के दर्शन होते थे। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उसने जाकर जहां भगवान स्वामीनारायण ने निवास किया था वह जगह पर जाकर भी देखा तो वहां पर भगवान स्वामीनारायण सो रहे थे। और फिर वापस आया। ऐसा 3 रात तक उसने किया। फिर भी तीनों रात तक जब जब वो माणकी के नजदीक गया तब तक सभी घोड़ों के पास में उसको भगवान स्वामीनारायण के दर्शन होने लगे। तब जाकर उसके ये क्रूर हृदय में कुछ प्रकाश का प्रवेश हुआ कि नहीं, यदि ये भगवान हो तो। और तब जाकर उसने सोचा कि अगर भगवान है तो मैं कल उनको सभा में जाकर मिलूंगा, वो मेरे नाम से मुझे बुलाते और मेरे गले में हार पहनाते हैं, तब मैं मानूंगा कि ये भगवान है। और दूसरे दिन जब यज्ञ का अवसर शुरू था, जैसे हमने पूजन विधि की वैसे ही वहां पर यज्ञ का अवसर चल रहा था। और जोबन पगी वहां अपना मुंह लपेटे हुए प्रवेश करता है और वहां जाकर फिर वो राह देखता है कि भगवान स्वामीनारायण उसे कब बुलाए। थोड़ी ही क्षणों के बाद भगवान स्वामीनारायण उसको नाम देकर बुलाए कि आइए जोबन लुटारा आइए। ये नाम सुनते ही जो भगवान स्वामीनारायण के अंगरक्षक थे, सभी काठी दरबार थे, उन्होंने तलवार अपनी म्यान में से निकाल दी, क्योंकि उनको भी पता था कि जोबन पगी कितना क्रूर और कैसा लूटपाट करने वाला लुटारा है। तब जाकर भगवान स्वामीनारायण सबको कहा कि वापस आप तलवार अपनी म्यान कर दीजिए। ये जोबन लुटारा आज लूटने के लिए नहीं आया है, आज लुटाने के लिए आया है। फिर जोबन ये इतनी बात सुनते तो वो भगवान स्वामीनारायण के पैरों में लेट जाता है। फिर भगवान स्वामीनारायण के सिर पर हाथ रखकर बोलते कि अभी तो आपका आधा संकल्प पूरा हुआ है। और ऐसा कहकर अपने गले से हार निकालकर वो जोबन पगी के गले में हार पहना देते हैं और फिर उनको वर्तमान ग्रहण करवाते हैं। जैसे हमने जल ग्रहण किया था पूजन के वक्त, ऐसे जब वर्तमान ग्रहण करते हैं तो हाथ में थोड़ा सा जल ग्रहण कर फिर दीक्षा मंत्र भगवान स्वामीनारायण वो कहते हैं और फिर बाद में वो पानी को हमें जमीन पर रख देना होता है। और जब वर्तमान का ये विधि चल रहा था तब भगवान स्वामीनारायण उसको बताया कि आज तक नहीं, आज तक तुम्हारे जितने जन्म हुए वो सभी जन्म के पाप नाश हो गए हैं और आपको भगवान का आश्रय हुआ है। तो जोबन पगी हंस पड़ा। क्यों हंस पड़ा? उसने कहा भगवान स्वामी को हाथ जोड़ के कि देखिए प्रभु, कोई मेरे जीवन के एक दिन के भी पाप अगर ले ले तो वो फटकर मर जाएगा, वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है। अगर एक दिन का भी मेरा पाप कोई ले ले तो इतना पाप मैं करता हूं। और भगवान स्वामी ने उनको प्रतीति करवाने के लिए कहा कि अच्छा वहां बड़ा सा पत्थर था, तो कहा कि ये जल है, पत्थर पर जाकर रख दो। और जैसे ही जोबन पगी ने वो जल का एक बूंद वो पत्थर पर रख दिया तो पत्थर पूरा चूर चूर होकर छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तब जाकर जोबन पगी को प्रतीति हुई कि मेरे ये जन्म के नहीं, आज तक मेरे जितने जन्म हुए सभी जन्म के पाप भगवान के चरणों में जाने से मिट गए।
और फिर जाकर भगवान स्वामिनारायण ने प्रसन्नता से कहा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तुमने आज, और उस दिन उन्होंने व्रत लिया कि मैं आज से मानव तो क्या, जीव जंतु भी नहीं मारूंगा। तो ये व्रत वो उस दिन लेता है जोबनपगी, और उसके व्रत से भगवान प्रसन्न होकर उसको कहते हैं कि मैं तुम पे बड़ा ही प्रसन्न हूं, बोलिए क्या चाहिए आपको वर में। तब जोबनपगी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि महिसागर नदी का ये जो किनारा है यहाँ पर, वहां से लेकर वात्रक नदी का जो किनारा है, बीच में का जो पंथक है, वहां मैंने बहुत ही प्रजा को त्रास दिया है। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर कभी सूखा दुकाल न पड़े। अगर आपका मन होता है तो आप बारिश ज्यादा कर दीजिए, लेकिन इतनी प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर सूखा दुकाल न पड़े। तो भगवान स्वामिनारायण ने उनको कहा तथास्तु। और ये 250 साल 230 साल से ज्यादा का इतिहास है कि आज तक महिसागर के ये किनारे से लेकर वात्रक के बीच में जो चरोतर करके पंथक है, वहां पर कभी सूखा दुकाल नहीं पड़ा है। तो ये भगवान और भक्त का संबंध हमें बताता है कि भगवान जब भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो भक्त भी ऐसा वर मांगते हैं कि जिससे समाज का उत्थान हो। फिर जाकर जोबनपगी ने कह दिया कि आप मेरे गांव वड़ताल में आइए, वहां पर मुझे आपसे रंगोत्सव करना है। और वहां जाकर जोबनपगी ने उस वक्त कई 100 गाड़े गुलाल के मंगवाकर, रंग के हौज बनवाकर भगवान स्वामिनारायण और संतों के साथ, भक्तों के साथ गुलाल रंगोत्सव से मनाया, गुलाल से रंगोत्सव मनाया। और बाद में उस वक्त निष्ठुरानंद स्वामी जो पूर्वाश्रम में सुथार थे, लकड़े का काम करते थे, उन्होंने 12 द्वार का हिंडोला बनाया वड़ताल में। वो आज भी वहां वड़ताल में हम दर्शन कर पाते हैं, वो 12 द्वार के हिंडोले के। और फिर उसमें जोबनपगी ने भगवान को विराजमान होने की प्रार्थना की। भगवान स्वामिनारायण की उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 12 द्वार पे 12 स्वरूप लेकर सभी भक्तों को दर्शन दिए। और जोबनपगी ने ये दर्शन, दुर्लभ दर्शन अपने हृदय में कैद कर लिए। इतना ही नहीं, जब भगवान स्वामीनारायण ने अपने धाम गमन का निर्णय तय किया, तब सभी भक्तजन को आज्ञा दी कि मेरी सभी से आज्ञा है कि कोई मेरे धाम गमन के अवसर पर अपना देह त्याग न करे। तो यह आज्ञा हो गई। तो कई ऐसे भक्त थे जो भगवान के धाम गमन के बाद एक क्षण भर भी नहीं रह पाते पृथ्वी पर। ये भगवान की आज्ञा को लेकर वो रह गए। उसमें से एक थे जोबनपगी। उन्होंने फिर ये व्रत लिया था कि भगवान स्वामीनारायण के अंतिम विधि की जो रज थी, जो भस्म थी, वो हर रोज दोपहर में एक बार वो भोजन ग्रहण करते थे। तो उनके धर्मपत्नी उसमें एक चपटी भरकर थोड़ी सी रज वो अंतिम संस्कार की रख देते थे। वो ग्रहण करने के बाद ही जोबनपगी के मुंह में अन्न या जल जा पाता था। एक दिन जब वो भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे तो देखा कि भस्म नहीं है प्रसादी की। तो उन्होंने सिर्फ अपनी आंख से ऊपर देखा तो उनकी धर्मपत्नी डर गई और धीरे से बोल दिया कि प्रसादी तो समाप्त हो गई, अब नहीं रहेगी। इतना ही शब्द सुनते जोबनपगी ने अपना प्राण त्याग कर दिया। इतना वो भगवान के स्वरूप में मग्न हो गए थे, इतना लीन हो गए थे कि तब जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए। ये है प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण। भगवान और भक्त के साथ जो संबंध होता है उसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये कीर्तन जो हमने सुना, आषाढ़ वद पड़वा के दिन से हम पूरे भारत में हिंडोला, जो भक्ति संप्रदाय से है, वो हिंडोला पर्व मनाते हैं। भगवान को झूले में बिठाकर झुलाते हैं और उसके साथ भी कई हमारी ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसीलिए आज हमने हिंडोला के दोनों भजन, उनका लाभ प्राप्त किया। हमारे सनातन धर्म में भक्त और भगवान प्रेम के नाते से बंधे हुए होते हैं और सभी जितने भक्त पूर्व हो गए हैं वो भी भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व सप्रेम अर्पण कर जुड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी आश्चर्य की बात हमारे सनातन धर्म में ये भी है कि भक्त भगवान के लिए जितना प्रेम और समर्पण करते हैं उससे ज्यादा, या फिर हम कल्पना में भी नहीं कर सकते, इतना प्रेम और समर्पण भगवान भक्त के लिए भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भगवान समर्थ है
वो चमत्कार कर सकते हैं तो वो चमत्कार करके भक्तों को खुश रखेंगे या उनके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। हमारे जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं सभी ने बताया है कि उनके अवतार का एक मुख्य प्रयोजन यह है कि वो पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के जो संकल्प होते हैं, भक्तों के जो भाव होते हैं, वो पूर्ण करें। जैसे सुदामा को भगवान से मित्रता का भाव था, तो बरसों बीत गए थे, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर भी जब सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह से मित्र के पास मदद के लिए चल पड़ा, तो जाकर कैसा संवाद सुयोग होता है। आज हम कल्पना कर सकते हैं यश भाई कि हम किसी हमारे मित्र से बरसों तक मिले नहीं है, बरसों की बात जाने दीजिए, कई दिन तक उसने फोन या मैसेज नहीं किया है हमको, और फिर वो हमारे घर पर आ जाता है और कुछ मदद के लिए बात करता है, तो पहले ही मन में सवाल हो जाता है विराट भाई, देख फोन तो करता नहीं है, मैसेज तो करता नहीं है, और जब जरूरत पड़ गई तो आ गए। तो आज के वक्त में हमारे समीकरण ऐसे हो गए हैं। लेकिन भगवान के साथ जब हमारा संबंध होता है, भगवान के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तब भगवान हमें ये नहीं कहते कि तूने मुझे आज तक कभी याद नहीं किया, जब मुश्किल आई तब मुझे याद करता है, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। तो ऐसे भगवान भक्तों के साथ अपना सब कुछ सर्वस्व भक्तों के लिए अर्पण कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब जब भगवान के अवतार आते हैं तभी हमें ऐसा दर्शन होता है। जब जब हम ऐसे पवित्र पुरुषों गुरुवर्यों के दर्शन करते हैं, तब भी हमें पता चलता है कि उन्होंने भी भगवान की तरह भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। आज ऐसी ही बात करनी है। 25 जनवरी के दिन प्रमुख स्वामी महाराज सबसे पहली परदेश यात्रा के लिए निकल रहे थे, और परदेश यात्रा का स्थान था अफ्रीका। हमने कई बार ये प्रसंग सुना है, कई बार इस पर हमने मनन चिंतन किया है, लेकिन जब जब हम ये बात सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कितनी कठिन बात है। प्रमुख स्वामी महाराज के लिए किसी को पूर्वग्रह था, द्वेष था, और उसी वजह से उन्होंने वहां कस्टम में ऐसा फोन कर दिया था या बात कर दी थी कि प्रमुख स्वामी महाराज के साथ जो आ रहे हैं सभी हीरे की चोरी करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर अफ्रीका में। तो प्रमुख स्वामी महाराज का प्लेन जब अफ्रीका में लैंड हुआ, तो सबसे पहले विंडो में से दिखाई दे रहा था कि हरि भक्त सब स्वागत के लिए आतुर थे, बाहर दिखाई दे रहा था, आ गए थे। लेकिन तभी जाकर कस्टम में से नोटिस आई कि प्रमुख स्वामी महाराज विमान में से नहीं उतर पाएंगे। तो देखिए प्रमुख स्वामी महाराज की स्थिति कैसी थी। अगर हम हमारे परिवार के साथ ऐसे घूमने के लिए चले जाते हैं और बोलते कि नहीं भाई कुणाल भाई का पूरा परिवार आया लेकिन कुणाल भाई को एंट्री नहीं मिलेगी, बाकी सबको जाना है तो जाइए, तो भाई हम ऐसा करेंगे भाई नहीं चलिए वापस जाते हैं, मेरे बिना सबको कैसे मजा ही नहीं आएगा ना। तो प्रमुख स्वामी महाराज ऐसा नहीं कहते। प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि देखिए हम यहाँ पर भगवान के लिए आए हैं, भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, और यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो भी हम सभी की आतुरता से राह देख रहे थे। तो हम किसी एक संत के साथ वापस चले जाते हैं, बाकी जो सब आए हैं, कोठारी स्वामी आए हैं, डॉक्टर स्वामी आए, तो सब तुम सब चले जाओ और भक्तों का भाव पूरा कीजिए। लेकिन थोड़ी ही मिनटों के बाद ये निर्णय आ गया कि प्रमुख स्वामी महाराज एंड द होल टीम नॉट एबल टू लैंड, दे हैव टू गो बैक, टेकिंग द नेक्स्ट प्लेन गोइंग टू इंडिया। तो अब तो ये बड़ी विपरीत परिस्थिति हो गई। इतना ही नहीं, जो कस्टम के ऑफिसर्स थे उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज और साथ में जो संतगण थे उनकी जो झोलियां थी जिसमें उनकी पूजा थी, जिसमें उनके वस्त्र थे, वो भी खोलकर देख लिया कि भाई हाँ यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है ना। इतना ही नहीं, हम जो ये टीका करते हैं कुमकुम का, वो करने का जो छोटी सी डिब्बी आती है, वो भी उन्होंने उंगलियां डाल डाल कर देख लिया कि इसमें तो हीरे नहीं छुपा दिए ना। तब जाकर कस्टम के जो ऑफिसर्स थे, चेक करने आए थे, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि कम से कम
100 से 125 शिलिंग तो कोई भी कितना भी गरीब कोई आदमी हो, लेकिन यहाँ पर कोई आता है तो साथ में इतना तो मिनिमम पैसा उसके पास होता ही है, 100 से 125 शिलिंग। लेकिन आपके पास तो एक शिलिंग भी नहीं है, ये कैसी बात हुई? तब जाकर साथ में जो हरिभक्त थे उन्होंने बताया कि ये संत तो ऐसे अपरिग्रह व्रतधारी है कि अपने पास धन या कुछ भी सुवर्ण चांदी कुछ नहीं रखते हैं, वो सब हम सब उनके लिए करते हैं, वो कभी पैसे भी नहीं छूते हैं। और फिर जाकर नेक्स्ट लाइन में सब वापस आते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपका ऐसा बड़ा अपमान हुआ होता है, आप वापस आते हो, और ऐसी गिनती थी कि भगवान हरिकृष्ण महाराज जो प्रमुख स्वामी महाराज के साथ में थे, तो अफ्रीका दूरी पर नहीं है भारत से, आप सुबह निकलते हो तो दोपहर शाम तक पहुंच जाते हो, तो साथ में कुछ खाना भगवान के लिए नहीं लिया था। लेकिन जब वापस आना हुआ तो 24 आवर्स हो गए ये सब विधि में। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने जब वापस आए तो जो सेवक संत थे उनको बोला कि भगवान को थाल बनाकर, थाल भगवान को भोग लगाकर फिर उनको सुलाना। अब जब हम किसी भी भाव में त्रस्त हो जाते हैं, वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, मत्सर हो, ईर्ष्या हो, कोई भी भाव हो, जब हम उनसे लिप्त हो जाते हैं तब हमारे मन में कोई और विचार नहीं आता है। ये हमारी अनुभूति है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम सोच नहीं पाते। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो क्रोध करता है उससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, और इसीलिए क्रोध में आकर व्यक्ति विवेकहीन कार्य करता है। लेकिन ये प्रसंग से हमें प्रतीति होती है कि प्रमुख स्वामी महाराज की स्थिति जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए अर्जुन को, वैसे ही थी। ऐसे बड़े अपमान से वो जरा भी चलित नहीं हुए। इतना ही नहीं, भगवान के प्रति जो भक्ति भाव प्रेम था उसमें भी जरा भी लेश कम नहीं हुआ। हमारे जीवन में क्या होता है, जब हमारी कुछ प्रार्थनाएं सफल हो जाती है भगवान की कृपा से, भगवान सुन लेते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन हमारा अपेक्षित परिणाम हमें प्रार्थना करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं मिलता है, तब जाकर हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने मेरी न सुनी, मैं भगवान की भक्ति करता हूं फिर भी उन्होंने मेरा काम नहीं किया। ये कॉमन एक्सपीरियंस हमारा सभी का है। जब जब हम मुश्किल में आ जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, काम हो जाता है, भगवान का आभार व्यक्त करते हैं, खुश हो जाते हैं, नहीं होता है, हमारी भक्ति कम हो जाती है, भगवान में से विश्वास डगमगा जाता है, और फिर जाकर हम सत्संग में जुटे रहते हैं तो वो फिर बन जाता है। लेकिन ये बढ़ने का, कम होने का हमारा सबका अनुभव रहता है जीवन में, कि ये होता रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज जैसे भगवान के भक्त हैं, उन्होंने न केवल अपने हृदय में से अपमान को दूर कर दिया, लेकिन भगवान के प्रति जो भक्ति थी उससे अपना हृदय सभर भी कर दिया था। इतना ही नहीं, दूसरे दिन सुबह जब प्रमुख स्वामी महाराज हरिकृष्ण महाराज के दर्शन के लिए पधारे तो उन्होंने हरिकृष्ण महाराज को दंडवत करने का शुरू कर दिया और प्रार्थना करते थे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी क्षति हो गई, मेरी त्रुटि हो गई, आपका जो भक्ति भाव था, मेरा आपके प्रति जो भक्ति भाव था उनमें ये त्रुटि आ गई है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसे करते करते 10 दंडवत प्रणाम से भी ज्यादा दंडवत कर दिए। तब जाकर सेवक संतों ने पूछ लिया कि ये क्या करते हो। तब सेवक संतों ने बताया, सेवक संतों को बताया प्रभु स्वामी महाराज ने कि कल मेरी वजह ठाकुर जी को भूखा प्यासा रहना पड़ा और रात को बड़ी देरी से उनका भोजन का थाल का प्रबंध हुआ। अब देखिए, इनमें प्रमुख स्वामी महाराज की कोई क्षति नहीं थी, उनका कोई इसमें गुनाह नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरे मन में क्या होता है कई बार कि भाई चलिए ना आज भगवान को मानसी में ही भोजन करा देते हैं और फिर खड़ा नहीं होना है, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मन से भाव से कर देते हैं तो भाव तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान तो कुछ ये हमारे जो विधि विधान है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा हमारा मन हमसे द्वंद्व करवाता है। जब हमें कुछ भक्ति भाव में कम करना हो, न करना हो या आलस हो। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से हमें ये दर्शन होते हैं कि उनका कार्य नहीं हुआ है, ऐसा ही नहीं, वो अपमानित हुए हैं। हमारे जीवन में अगर हम विचार करें
तो हमें कभी ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा कि भगवान की भक्ति करते करते हमें अपमानित होना हुआ पड़ा। हम तो भक्ति करते करते आगे ही बढ़ते जाते हैं। भगवान हमें सुख सुविधाएं और आशीर्वाद ही देते जा रहे हैं। कभी उन्होंने हमें प्रमुख स्वामी महाराज जैसी परिस्थिति में नहीं रखा है, क्योंकि उनको पता है कि ये साधक अवस्था में है। लेकिन इसीलिए उन्होंने हमें ये आदर्श दिया है कि ऐसे जैसे प्रमुख स्वामी महाराज की मन की स्थिति है, ऐसा होने के बावजूद भी भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है उसमें कोई बाधा नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति और स्थिति हमारे मन की और हृदय की भी रहनी चाहिए। जब जब हम ऐसी परिस्थिति में आए तब तक। इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर प्रमुख स्वामी महाराज ने, ऐसा नहीं था कि जो सब गए थे वो ही दुखी थे, जो पूरा भक्त समुदाय था वो भी दुखी था कि अपने गुरु का ऐसा अपमान हुआ और वापस आना हुआ। तो जब आप किसी के साथ हृदय से जुड़े हुए होते हो तो उसका दुख आप प्राप्त करते हो, उसका दर्द आपको महसूस होता है। जैसे अगर बच्चा खेलता होता है और गिर जाता है, तो अगर पिता या माता या दादा या दादी देख रहे होते हैं तो उनके मुंह में से सिसका निकल जाता, अरे रे 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 रे, पीड़ा तो आपको हुई नहीं है, फिर भी जो दुख की प्रतीति हमें होती है, यह कारण होती है कि हम उनसे ऐसे भाव से हृदय से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के साथ ये सब भक्त समुदाय जुड़ा हुआ था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा कि सभी के मन उदास है, तो उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत में प्रथम के 74 में वचनामृत पर निरूपण करके सभी भक्तों को हंसा दिया। और किसी को ऐसा मन में रहा ही नहीं कि प्रमुख स्वामी महाराज का ऐसा अपमान हुआ है। जब आप अपने गुरु को ऐसे प्रफुल्लित देखते हो, ऐसे हड़वास में देखते हो, ऐसा होने के बावजूद भी, और इतना ही नहीं, अपने शिष्यों को आनंद प्रमोद कराते दिखते हो, तो किसी भक्त के हृदय में दुख दर्द नहीं रहता है। अब जाकर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद जो अफ्रीका की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज का ऐसा अपमान किया था, उनका भाव नहीं था अपमान करने का, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हो गया था। तो उनको पता चला कि भाई ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई है। तो उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से क्षमा याचना कर ली और फिर आमंत्रण दे दिया कि अब आ जाइए वापस। तो पराग भाई, कोई आपको अपने घर में आने से मना कर दे कि भाई विशाल तू मेरे घर मत आना, कोई भी हो, मैं हो या कोई भी हो, अगर आप किसी को मुंह पे बोल दो विराट भाई कि मेरे घर पे मत आना, तो आप जाओगे वापस उसके घर पे? वो आपको बुलाने आए फिर भी आप नहीं जाओगे। मैं भी नहीं जाऊंगा कि भाई मेरा अपमान कर दिया, मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में ऐसा कोई भी भाव नहीं था कि मेरा अपमान हुआ है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला चलो भगवान की मर्जी हो गई है, तो भक्तों के भाव पूरे करने के लिए चले जाते हैं। तो वो निकल पड़े। ये साल था 1974 और प्रमुख स्वामी महाराज ये जो यात्रा पर निकल पड़े, तो पहले अफ्रीका की यात्रा की, फिर वो पधारे लंदन में। वहाँ पर 28 दिन तक वो रहे। 28 दिन में उन्होंने 200 से भी ज़्यादा पधरानी की। और उसी वक्त हम जो चातुर्मास का जो प्रारंभ होता है देव शनि एकादशी से, और जो त्यौहार हम सब मनाते हैं, तो वो सभी त्यौहार का वक्त भी उसी वक्त आया था। तो ये सभी त्योहारों का उन्होंने वहाँ मनाए लंदन में। रथ यात्रा से शुरू करके ये त्योहारों को मनाना शुरू हुआ। एक दिन में वो 10 से ज़्यादा पधरावनी करते थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे परिवार में भी एक दिन में हमारे 10 परिवार के सभ्यों के घर जाकर हम मिले हो, सिर्फ मिले हो। और यहाँ पर ऐसी परिस्थिति थी कि उस वक्त नेविगेशन सिस्टम नहीं थी। आपको मैप लेकर साथ में जाना होता था, मैप रीड करना होता था, और पहले एटलीस्ट 30-40 मिनट आपको स्टडी करना होता है कि भाई हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है, कौन सा नंबर है एग्जिट लेने का। तो ये लंदन की बात है। लंदन से प्रमुख स्वामी महाराज पधारे थे यूएसए सबसे पहली बार। और जब पहली बार प्रमुख स्वामी महाराज का विचरण अमेरिका में हुआ, तो अमेरिका में उस वक्त इतनी आबादी में हमारे भारतीय भी नहीं थे, तो गुजराती तो होते ही कहाँ पर। याद से 48 ईयर्स पहले की बात है। तो उस वक्त जो आते थे भारत से, वो बोलते थे कि वो
एयरपोर्ट पर जब लैंड होते तो टेलीफोन डिक्शनरी में से ढूंढते कि पटेल या फिर जो हमारी इंडियन लास्ट नेम होती है कौन सी कॉमन, वो ढूंढते, उस पर नंबर करते। और परिचय नहीं है मुझे उनसे, मैं बोलता कुणाल भाई मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ, मुझे लेने के लिए कोई नहीं है, अगर आपसे बन पाए तो आ सकते हो लेने के लिए। तो ऐसा 5-10 फोन लगाते और किसी के हृदय में भगवान प्रेरणा करते और वो चले जाते लेने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति थी, उस वक्त की बात है। और उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने अमेरिका में जो पधरावनियाँ की, एक बार पधरावनी के लिए वो पधारे थे। अब हमारे जो सत्संग में संतों और स्त्री पुरुष मर्यादा की, संतों की जो है उसकी वजह से स्त्रियां हमारे गुरुभाइयों से या संतों से बातचीत नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी उनके मन में जो भाव होते हैं वो भगवान पूर्ण करते हैं। तो जिस यजमान के घर पे प्रमुख स्वामी महाराज पधरावनी के लिए गए थे, वहां से वो अल्पाहार ग्रहण करके रवाना होने वाले थे। लेकिन जो यजमान की धर्मपत्नी थी उसका भाव था कि प्रमुख स्वामी महाराज मेरे घर पे दोपहर का भोजन ग्रहण करने के बाद ही विदाई हो। उन्होंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने अंतर्यामी पने से उनका भाव ये जान लिया। और जब 10:30 बजे निकलने का वक्त हुआ तो उन्होंने सामने से कहा कि लाइए थोड़ा सा भोजन लाइए, हम थोड़ा सा भोजन ग्रहण करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज सिर्फ विजिट नहीं करते थे घरों की, कि वहाँ पर चले जाते हैं, मिलते और फिर निकल जाते। ये जो भक्तों के भाव थे, उनके हृदय में छोटे छोटे संकल्प थे, वो भी ऐसे पूर्ण करके वो निकलते थे। और लंदन और अमेरिका का जो विचरण था, दोनों देश में ठंड ज़्यादा है, तो कई जगह प्रमुख स्वामी महाराज जब विचरण के लिए निकलते तो बर्फ होता था, ठंड होती थी। और आपको पता है जैसे हमारे संत उपवस्त्र और धोती दो ही वस्त्र धारण करते हैं, तो उसमें ठंड भी ज़्यादा लगती है। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने आज से 48 ईयर्स पहले ये देश में जो भी सुविधाएं उपलब्ध थी उसमें रहकर जो पधरावनियाँ की है। एक कल्पना कीजिए कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, उसका कारण है 48 ईयर्स पहले और उसके बाद प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पर आए थे और पूरे अमेरिका में एक भक्तों के भाव पूरे करने के लिए 100 मील दूर तक वो जाते थे, उनके घर पे मिलते थे, उनके भाव ग्रहण करते थे। तब जाकर आज हम यहाँ पर मंदिर में भगवान का ये दर्शन कर पाते हैं। और उसी प्रमुख स्वामी महाराज की हम आज शताब्दी वर्ष की तैयारियां कर रहे हैं। तो हमें मन में सहज ही होता कि हम क्या प्रमुख स्वामी महाराज के लिए कर पाते हैं ये शताब्दी के अवसर पर। तो आज देश में तो मोर देन मंथ का पूरा सेलिब्रेशन होने वाला है। देश प्रदेश में से हजारों लाखों भक्तों वहाँ जाकर लाभ लेने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो हमारे यहाँ ये हमारा मंदिर हमें भगवान ने, हमारे गुरु भाइयों ने भेंट में दिया है। तो उस मंदिर में जो छोटी मोटी सेवा होती है, किसी को बताए बिना अगर हम देखकर ही कर लेते हैं। भेंट में जिसने बताया था कि अगर मंदिर में आते हो, कहाँ पर आप देखते हो कि स्वच्छता नहीं है या फिर स्वच्छता की ज़रूरत है या फिर ये काम करने की आवश्यकता है, तो बिना किसी को बताए हम वो खुद कर सकते हैं। और वो ही हमारी प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति सच्ची शताब्दी की श्रद्धांजलि है। आज यश भैया आए, पहले आए हो यश भैया? आप पहली बार आए यश भैया, मुझे लगता है मैं सोचता था कि भाई पहली बार आए यश भैया। तो देखिए मंदिर होने के बाद यश भाई, आपको इसलिए मैं बुला रहा हूँ अभी कि मंदिर होने के बाद हर सभा में कोई ना कोई ऐसे आपके जैसा भक्त मंदिर में आके दर्शन के लिए पधारता है। फ़ोन पे अब सब फ़ोन करते हैं कि भाई हमें दर्शन करने के लिए आना है, कौन से वक्त आप दर्शन खुले रखते हो। तो फिर नरेंद्र बापू दौड़कर, विष्णु काका दौड़कर आ जाते हैं, भक्तों को दर्शन करवाते हैं। तो छोटा छोटा हमसे जो भी हो सके योगदान हमारे मंदिर के लिए, तो हम वो करें। वो ही प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी अवसर पर हमारी श्रद्धांजलि है। इतना ही नहीं, प्रमुख स्वामी महाराज जब यहाँ पर आए थे
तो ऐसा ही नहीं था कि सब भक्तों उनके लिए आदर सत्कार ही करते थे, उनका अपमान भी हुआ है। तो हमें भी ऐसी अनुभूतियाँ होगी कि कई बार हम अच्छा करने के लिए जाते हो और कुछ गलत हो जाए, या फिर हमें अच्छा करने की भावना हो और किसी और व्यक्ति की कारण हमें वो न करना हो। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा मन में जो कुछ संकल्प हो वो पूरा हो या न हो, हमारे मन में यही केवल भाव होना चाहिए कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है और गुरु के महिमा के लिए हमें ये कार्य करना है, न कि किसी और भाव से। तब जाकर हमें मन में ये भी अपेक्षा नहीं रहेगा कि भाई हमें इतना कुछ किया लेकिन हमें कुछ फल तो दिखाई नहीं दिया। हम सोचते हो कि भाई हम तो हर बार सभा में आते हैं तो इतने कुछ थोड़े ही भाविक भक्त होते हैं, सभा में आते हैं लेकिन संख्या तो दिखाई नहीं देती है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज की ये 74 की यात्रा को हम स्मृति पट पर लाए, तब जाकर हमें प्रतीति होगी कि प्रमुख स्वामी महाराज एक एक व्यक्ति को ढूंढकर उनको फोन लगाकर मिलने के लिए जाते थे, और अगर कोई ना भी बोल देता था तो प्रमुख स्वामी महाराज के भाव में कभी ओट नहीं आती थी कि भाई चलिए सभी के लिए हम इतना कुछ करते हैं लेकिन किसी को परवाह नहीं है। तो आज हम छोटा सा कुछ कार्य करते हैं, हमें उसमें कुछ बड़ा दिखाई नहीं देता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें से कुछ बड़ा नहीं होगा। मुझे ये सूरत का जो प्रसंग है बहुत ही प्रिय है। सूरत में जब ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ने एक हरिभक्त को आज्ञा कर दी कि आप ऐसे सत्संग सभा का शुभारंभ कर दीजिए, तो वो हरिभक्त ने गुरु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर सभा की शुरुआत भी कर दी। लेकिन क्या हुआ कि सभा में उनकी पत्नी और कई बार एकाध कोई भाविक आ जाता था, तो उन्होंने कई बार योगी जी महाराज को पत्र लिखा कि सभा में कोई आता नहीं है, बुलाता हूं मैं सबको लेकिन कोई आता नहीं है, तो मैं अब आगे से सभा नहीं करने वाला हूँ। तो योगी बाबा उनको प्रेरणा दे देते, आशीर्वाद दे देते कि नहीं, ऐसी बल बिना की बात मत कीजिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये करते हैं तो करते रहिए, आगे होगा, आगे बड़ा ही अच्छा आपको फल मिलेगा। और आज ये सूरत की जब आप बात करें तो आज ये सूरत में हमारा जो शिखरबद्ध मंदिर है अडाजन में, वहाँ पर हर वीक जो सत्संग सभा होती है ऐसे, उसमें 35 से 50 हजार तक के भाविक पधारते हैं और लाभ लेते हैं। लेकिन हम 50 साल पहले की बात देखें तो हमें उस वक्त ऐसा कुछ बड़ा भव्य दिव्य दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा ही होता है जब कोई बड़ा सा वृक्ष अपनी बीज अवस्था में हो, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है। लेकिन भगवान और भगवान के ऐसे पवित्र जो संत होते हैं, उनके आशीर्वाद में, उनके शब्दों में ऐसी ताकत होती है कि अगर आज छोटा सा कुछ दिखाई देता है, भविष्य में जाके वो इतना कुछ बड़ा हो सकता है। तो आज प्रमुख स्वामी महाराज की ये शताब्दी वर्ष की हम जो जयंती उनकी मनाने जा रहे हैं, उस पर हम प्रमुख स्वामी महाराज को, महंत स्वामी महाराज को, भगवान स्वामी को प्रार्थना करते हैं कि आपने जो हम पर उपकार किए हैं, आपने जो हमारे लिए कुछ अपना जीवन बलिदान दिया है, तो हम तो आपके जितना करने के लिए समर्थ नहीं है, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा बुद्धि और बल दीजिए कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए और आपके जैसे गुण ग्रहण कर पाए। अस्तु। जय स्वामी। एक कीर्तन में कहा गया, मान अपमान में एकता, सुख दुख में संभाव, अहीं के सुख अल्प है, नहीं स्वर्ग लुचाओ, तन की उपाधि तजे सोई साधु, हाजी भला साधु। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के ओर हम देखें तो ये सभी लक्षणों का हमें चरितार्थ उनके प्रसंगों से हमें मिलता है। परम गुरुदेव विशाल ने हमें आज प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती के अनुरूप प्रसंगों का लाभ दिया, उनके लिए हम फिर से उनके आभारी हैं। हम अगले चरण में वीडियो दर्शन में जुड़ते हैं। शांति
क्रांति के जनक। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज सनातन धर्म की दो मुख्य भावना वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्व जीव हितावह के लिए सदा विचरण करते रहे थे। स्वामी जी बार बार कहते थे, हर व्यक्ति महान है यदि वो जीवन में सद्गुणों को धारण करता है। जाति पाति से कोई महान नहीं बनता। अपने उच्च जीवन के मूल्यों से व्यक्ति की सही महानता होती है। बिना किसी भेदभाव सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम बरसाने वाले प्रमुख स्वामी महाराज के समक्ष ऊंच नीच, जाति पाति, गरीब दबंगर, शिक्षित अशिक्षित, देशी विदेशी जैसे सभी भेदभाव मिट जाते थे और हर कोई उनके निस्वार्थ प्रेम के कारण पवित्र प्रेरणाओं से भर जाता था। ऐसा एक दर्शन हुआ झांझरका गांव में। गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के झांझरका गांव में संत श्री सवगुणनाथ जी के समाधि स्थान पर एक सुंदर मंदिर की रचना की गई है, जहां से अनुसूचित जातियों के पिछड़े लोगों के उद्धार का कार्य भली भांति किया जा रहा है। श्री सवैयानाथ जी नाम से भी प्रसिद्ध ये मंदिर अनुसूचित समुदाय का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज सौहार्द एवं स्नेह की धारा लेकर 3 मई 1990 को इस तीर्थ भूमि पर पधारे थे। मंदिर में देव दर्शन कर सभी को आदर से मिलकर अपना स्नेह बरसाया। मंदिर के तत्कालीन महंत आदरणीय श्री बलदेव दास जी महाराज ने प्रमुख स्वामी जी महाराज की पधरावनी अपने निवास में करवाई। स्वामी जी ने भावी महंत शंभुनाथ जी को भी उनकी उज्जवल तरक्की के लिए आशीर्वाद दिए। एक विश्व वंदनीय महान संत को अपने गांव में अपने तीर्थ स्थान में पाकर न केवल सभी झांझरका निवासी किंतु हजारों अनुसूचित जाति के सभी भक्त कृतकृत्य थे। કે પ્રમુખ સ્વામી બાપાએ ઝાંઝરખાની અંદર પગ મૂક્યા, એમના ચરણ આવ્યા, એમણે આ દલિતોને પોતાના હૈયામાં નિવાસ આપ્યો। એટલે અમે એવું માનીએ છીએ કે સાક્ષાત હરિ ઝાંઝરકા પધાર્યા અને હરિ ઝાંઝરકામાં આવીને એ ઝાંઝરકાનો જે ટુકડો છે ને એ ટુકડાને પવિત્ર કર્યો ને એ ટુકડાના સંદેશથી સારા ભારત વર્ષના દલિત સમાજને પૂજ્ય બાપાએ ગૌરવાન્વિત કર્યો છે, એક સંદેશ આપ્યો છે। इस तीर्थ में आयोजित सत्संग समारोह में स्वामी जी ने महंत श्री बलदेव दास जी महाराज को भी अपने साथ ही आसन पर बिठाया तथा आशीर्वचन देते हुए कहा, किसी भी ज्ञाति में जन्म लेने से आत्मा की निम्न कक्षा नहीं हो जाती। मोक्ष का अधिकार हर किसी को है। सदियों से समाज में रूढ़ हुए जाति पाति के भेदभावों के दूषण को दूर कर हिंदू समाज को पुनः जागृत कर एकजुट करने की निस्वार्थ शांत क्रांति लाने वाली ऐसी विरल संत विभूति को कोटि कोटि वंदन। सभा के अंतिम भाग में हम संकल्प में जुड़े उससे पूर्व कुछ अगत्य के अनाउंसमेंट्स हम देख लेते हैं। तो विशेषतः अगले शनिवार को हम परम पूज्य विवेक निधि स्वामी और पूज्य घनश्याम सिंह का लाभ हमें प्राप्त होगा और साथ ही साथ हम गायत्री यज्ञ का भी आयोजन करने वाले हैं। तो दोपहर को मंदिर के बाहर के पार्टी लॉट में गायत्री यज्ञ होगा और उसके बाद यहाँ पे 5:30 बजे से लेकर के हमारी सभा होगी। तो आप सभी इस बात का ख्याल रखिए और अपने सगा स्नेही और मित्र मंडल को भी बताइए और सभी अब यहाँ पे संतों का लाभ लेने के लिए आइए। हाँ, 12 to 4 गायत्री यज्ञ होगा और उसके बाद 4 o'clock से ऑनवर्ड्स 5 o'clock ऑनवर्ड्स हमारी सभा यहाँ पे होगी। तो आप खास आप लाभ लीजिएगा संतों का। और विशेष हमारे सत्संग मंडल में
थोड़े दिनों के लिए परम पूज्य रोमा जी जुड़े थे और उनको स्वामीनारायण भगवान या फिर सत्संग का कोई परिचय पहले नहीं था, मगर जब तक वहाँ यहाँ पे रही वो सभा में आती थी तो और उनके जो भाव थे वो उन्होंने शब्दों के द्वारा हमें भेजे। अब तो वो वापस चली गई है, मगर उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करके कहा था कि मैं जो लिख रही हूँ आप ज़रूर सबको सुनाना, तो उससे आप सभी को प्रेरणा मिले। तो हम पराग भाई को विनंती करेंगे उनका पत्र जो है हमें पढ़कर सुनाए। जय स्वामीनारायण। रोमा जी का पत्र है और उनके शब्द। मैं आप सबसे अपने हृदय की बात स्वयं करना चाहती थी, बट मंदिर की गरिमा के कारण वो नहीं कर पाए। आज कृणाल जी से और उनके द्वारा मेरे से मैं आपसे ये बात व्यक्त कर रही हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी। जब मैं मॉर्गन टाउन आई थी तो एक अजनबी जगह थी, और जब अजनबी लोग 6 महीनों में मैं अपना पूरा एक परिवार महसूस कर सकती हूँ। यहाँ मुझे यहाँ बहुत स्नेह मिला है, आदर मिला है और हंसी खुशी के पल मिले हैं। मुझे यहाँ से जीवन भर चलने वाली मित्रता और सौगात भी मिली है, जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृणाल जी, विशाल जी, केयूर जी, शिवांग भाई जो हिंदी में अनुवाद करके मुझे सत्संग का लाभ सुनवाते हैं, उसके लिए मैं उनका भी बहुत आभार मानती हूँ। मीना आंटी, प्रिया जी, संगीता जी, बा दादा, स्वीटू जी, पारुल जी, दृष्टि, उनकी मम्मी जी, विजय भाई जी, निर्मल जी और सभी आत्मीय जन का बहुत धन्यवाद मुझे परिवार जैसा महसूस करवाने के लिए। मैं अतिरिक्त धन्यवाद करना चाहती हूँ जूलिया आंटी और विनोद अंकल और नरेन अंकल का। उन्होंने मुझे अपने ही परिवार का समझा और मेरी बहुत सहायता की। अंत में मैं अपने सबसे प्रिय नरेन अंकल के लिए कहना चाहती हूँ, आपका हृदय बहुत विशाल है। एक अनजान व्यक्ति के इतनी सहायता करना ये कोई आपसे ही सीखे। ऐसे लोग आजकल कम ही मिलते हैं। आपने न सिर्फ मुझे अपना समझा बल्कि मेरा आदर भी किया। मेरा हृदय गदगद हो रहा है। आपने ही साम दाम दंड भेद करके मुझे मंदिर लाने का हर संभव प्रयत्न किया और मेरे अंदर भी ठाकुर जी स्वामीनारायण के प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी। जीवन में अब जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर स्वामीनारायण मंदिर जाऊंगी और इसके श्रेय सिर्फ नरेन अंकल को जाता है। थैंक यू अंकल, आई लव यू। मेरी स्वामीनारायण भगवान और मेरे राधा वल्लभ स्वामी भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी लोग पर अष्टलक्ष्मी की कृपा हो और अभूतपूर्व आध्यात्मिक उन्नति हो। बहुत शुभाशीष, पूजा सिंगल। जय स्वामीनारायण, जय श्री राधे। आप सब जब भी इंडिया जाए और जयपुर जाए तो उनके घर जरूर जाए, ऐसा आमंत्रण भी है। जय स्वामीनारायण। हमने रोमा जी के शब्द सुने। हम सभी को शायद इसी बात की अनुभूति होती है, जब से हम सत्संग में आ रहे हैं तभी से इस सत्संग को हम परिवार की तरह ही देखते हैं और सभी एक दूसरे में इतने घुलने जाते हैं। आज जब हम संकल्प में जुड़े तो आज एक और भी विशेष बात है कि इसी हफ्ते में 28 तारीख को परम पूज्य दृष्टि बहन का भी बर्थडे है, तो हम उनको भी तालियों से बधाई देते हैं। महाराज स्वामी में प्रार्थना करते हैं कि महाराज स्वामी उनके सभी शुभ संकल्प पूर्ण करें, उनके जीवन में खूब प्रगति हो और उनके ऊपर महाराज स्वामी की कृपा बनी रहे। और खास रोमा जी जिनका हमने शब्द और पत्र सुना, उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि महाराज स्वामी उनको शक्ति दे और जल्दी से जल्दी वे ठीक हो जाएं। अक्षरधाम का कार्य निर्माणाधीन है, तो वे जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। भगवान स्वामी महाराज का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो अच्छा ही रहे। मॉर्गन टाउन मंडल में आने वाले सभी हरिभक्तों भाविकों के सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, उस लिए हम संकल्प में जुड़ते हैं। जे स्वामी नारायण नाम लेशे तेना भला पातक बाड़ी देशे, छे नाम हमारा स्मृति मायनेक सर्वोपरिया जगणायेक, षडाक्षरी मंत्र महासमर्थ
જેથી થશે સિદ્ધ સમાસ્તર્થ સુખી કરે સંકટ સર્વ કાપે અંતે વળી અક્ષરધામ આપે. ઓમ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ 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 નારાયણ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ગુણાતીતમ ગુરુમ પ્રાપ્ય બ્રહ્મરૂપમ નિજાત્મના વિભાવ્યદાસ ભાવેન સ્વામિનારાયણં ભજે. શ્રીહરિમ સાક્ષરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજામ દિવ્યરૂપમ પરમ શાંતિદામ મુક્તિદામ કામદામ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકાંઠમ ભજે. શ્રીહરિમ જય जय स्वामीनारायण। जय स्वामिनारायण। बच्चों को नहीं करना है ऐसे। सभी को करना, सभी को। बच्चों में भी भगवान होते हैं ना, अक्षर को भी करना। तुम कर लो अक्षर को। हाँ शाबाश। तो पंड्या जय स्वामी गुरुदेव खरा ना। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय।
उमापति महादेवनी जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय, अक्षरधाम महोत्सव की जय। 왜 움직이지? निकाल दो। बताया हाँ, इसको दबा के इसको खींचो मत खींचना नहीं है बेटा, खींचो मत, छोड़ दे नहीं गलत, इसमें ही डाल दीजिएगा माइक हाँ वो माइक सभी सब गाने बजाने वाले सब कुछ इसका कवर बड़ा बेटा buku temui mana buku sih kayak pelak temui नहीं वो पता नहीं इसका कैसे रहता है, ये रह गया देखा जी मेरा बेटा उठ जाओ लगेगा वो हटे लगेगा वो उनका चल रहा है विशाल भाई बंद